नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। संयुक्त किसान मोर्चा के एक बयान से पंजाब का सियासी पारा चढ़ गया है। चुनावी साल है, ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किसानों से एक अपील की गई है कि गांव में आने वाले राजनेताओं का बहिष्कार करें। हालांकि जब इस पर विवाद हुआ तो सफाई भी दी गई, लेकिन किसानों की चुनावी रणनीति पर सभी की नजरें हैं कि आखिर पंजाब विधानसभा चुनाव में किसान संगठन किसका साथ देंगे और किसका विरोध करेंगे, क्योंकि बंगाल चुनाव में किसान संगठनों ने टीएमसी का खुलकर समर्थन किया था और बीजेपी का यहां पर विरोध किया गया था। उधर टिकरी बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन फिर से विवादों में घिर गया है। धरने में शामिल कुछ लोगों ने पास के ही गांव में एक शख्स को जिंदा जला डाला। इस वारदात के बाद से ही गांव के लोगों ने किसानों के खिलाफ यहां पर मोर्चा खोल दिया है। उधर आंदोलन की आड़ में हो रहे अपराध पर केंद्र और हरियाणा सरकार दोनों ही सख्ती के मूड में है और हरियाणा सरकार केंद्र से अब ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार कर रही है। किसान नेता 3 कृषि कानूनों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को 7 महीने होने को हैं। सरकार झुकने को तैयार नहीं, राजी भी नहीं है। इस बीच पंजाब में विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों से गांव में राजनेताओं के बहिष्कार की अपील की है। इस अपील से सूबे का सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ गया है। तीन ही कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन का आगाज पंजाब की धरा से हुआ था, जो अब दिल्ली की सरहदों पर चल रहा है। पंजाब में 2022 में विधानसभा चुनाव है। सूबे में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से गांव में वोट मांगने के लिए नेताओं को न आने देने की अपील की। भारतीय किसान यूनियन कादियां के नेता हरमीत कादियां ने इस बारे में किसानों से आह्वान किया। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋਇਆ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭੁੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਪਈ ਆ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਐਸਕੇਐਮ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ करना, ना पिंडां 'ਚ ਵੜਨ देना। बयान पर बवाल बढ़ता देख हरमीत कादियां ने सफाई दी और कहा कि राजनीतिक पार्टियों को गांव-गांव जाने से गुरेज करने के बारे में कहा था, न कि राजनीतिक पार्टियों का बॉयकॉट करने के लिए। ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦੇਣੀ ਇੱਥੇ, ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਂਝ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-7 ਬੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 8-8 10-10 ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, 7 ਦਿਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2.5 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੂਹਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੀਣਨ ਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਘਾਲਾ ਹਨੇਰਾ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ 2022 ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। हरमीत कादियां ने कहा कि 2022 के चुनावों को लेकर ग्रामीण हर राजनीतिक पार्टी को परख रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी किसान मोर्चा के साथ खड़ी है।
ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਬਣੀ ਆ, ਨਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਢੰਗ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। किसान बीजेपी नेताओं का विरोध तो पहले से ही कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या किसान संगठन पंजाब की चुनावी रण में अपनी ताकत से सियासी दलों के लिए चुनौती बनेंगे और किसानों का विरोध किस दल पर भारी पड़ेगा, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने बंगाल चुनाव में टीएमसी का समर्थन किया था और बीजेपी के विरोध में प्रचार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। और उधर टीकरी बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन एक बार फिर से सवालों में है। यहां किसान आंदोलन की आड़ में एक और बड़े अपराध को अंजाम दिया गया। आंदोलन में शामिल एक शख्स को यहां पर तेल डालकर जिंदा जला डाला। ग्रामीण आंदोलन में शामिल किसानों पर तंग और परेशान करने के आरोप लगा रहे हैं। पूरा मामला क्या है, हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए जरूर देखिए। टिकरी बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन फिर सवालों में है। आंदोलन में शामिल एक शख्स को कुछ लोगों ने जिंदा जला दिया। बहादुरगढ़ के बाईपास पर गांव कसार के नजदीक आंदोलनकारी किसानों के धरने में गए गांव कसार के गए एक शख्स जिसका नाम मुकेश था, उसे तेल डालकर जिंदा जला दिया। गंभीर रूप से झुलसे मुकेश ने कुछ घंटों बाद इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मुख्य आरोपी कृष्ण जींद जिले के गांव रायचंद वाला का रहने वाला है। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, मेन तो ये इसमें वहाँ शराब पीने की बात आई है, पूछताछ में शराब पी है और अब तक की जो पूछताछ करी है उसमें अब तक की ये सामने आया है कि ये उसने अपनी वारदात को अब तक कबूला है और उसमें एक संदीप नाम का और जींद का जो है वो भी नाम खुलासा हुआ है अब तक 2। और अभी हम और भी गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। जो भी साक्ष्य या जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करते हैं। जो मृतक था वो उनके किसानों के पास लगातार कंटिन्यू बैठता था? नहीं, ऐसा कुछ सामने नहीं आया, लेकिन अमूमन नज़दीक ही गांव है, कसार गांव जो नज़दीक है, जो स्थल है वहाँ से तो आम जनता का वहाँ आना जाना रहता है। तो ये आया कि भाई अमूमन वहाँ आना जाना तो रहता ही था, लोग बाग जाते भी थे। उधर रास्ता ही वही है, रास्ता गांव का निकासी का मेन रास्ते बाईपास जाने का। बताया जा रहा है कि पहले मुकेश ने जींद से आंदोलन में शामिल कुछ किसानों के साथ शराब पी, फिर किसी बात पर उनकी कहा सुनी हुई और उसके बाद आरोपियों ने मुकेश को जिंदा जला दिया। ग्रामीणों ने किसानों पर तंग परेशान करने के भी आरोप लगाए। गांव वालों का आरोप है कि आंदोलन में शहीद होने का नाम लेकर मुकेश पर तेल छिड़का गया और फिर आग लगाई गई। इस धरने को यहां से शिफ्ट किया जाए। सर, ये किसान अब कोई भी वीडियो भेजे, ये वीडियो हमारी नहीं है। वीडियो मौके की वीडियो भी मेरे पास है सारी, मैं प्रशासन को भी दे दूंगा। पत्रकार लेना चाहता हूँ पत्रकार ले लेगा। मैं मौके पर गया हूँ, मैंने जहाँ जड़ा है वहाँ से वो उठाया वहाँ की भी मेरे 3 वीडियो हैं। 1 मिनट की एक है, 40 सेकंड की एक है, 1.5 मिनट की एक है। 101% हम कह रहे हैं इस पर तेल डाल कर आग लगाई गई है। हमारा भाईचारा इस बात से पूरा दुख में और पूरा गांव रोष में है। हमारे को आराम से रहने दे। पुलिस जांच से पूरे संतुष्ट हैं। जो प्रशासन करेगा, दोषी को तो छोड़े नहीं और निर्दोष को फंसाया नहीं जाएगा। पुलिस ने आरोपी कृष्ण को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कृष्ण लंबे समय से आंदोलन में शामिल था। घटना स्थल पर आरोपी का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। टिकरी बॉर्डर पर किसानों का मोर्चा तब सुर्खियों में आया था जब आंदोलन में शिरकत करने बंगाल से आई एक युवती के पिता ने अपनी बेटी के साथ हैवानियत के आरोप लगाए थे। उस मामले में भी पुलिस कई युवा किसान नेताओं को गिरफ्तार कर जांच कर रही है। जींद से विजेंद्र कुमार और बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़, न्यूज़ 18 हरियाणा।
तो टीकरी बॉर्डर पर इस जघन्य अपराध के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी एक बड़ा बयान दिया गया है। उनका यह कहना है कि किसान आंदोलन में असामाजिक तत्व आ चुके हैं और इस बारे में हमारे पास रिपोर्ट भी है। किसान संगठनों के धरना स्थल पर बढ़ती हिंसक और अनैतिक वारदातों को लेकर केंद्र और हरियाणा सरकार अब सख्ती के मूड में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में असामाजिक तत्व आ चुके हैं। हमारे पास रिपोर्ट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर आंदोलन ऐसे ही हिंसक और अनैतिक रहा तो कार्रवाई होगी। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आंदोलन से जुड़ी हर गतिविधि की जानकारी दी और कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चले तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस तरह की हिंसा और अनैतिक कार्य हो रहे हैं उसे सहन नहीं किया जा सकता है। जो ये किसान आंदोलन है ये ठीक है, अगर शांति प्रिय किसान आंदोलन चलता रहे तो हमें भी उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो इनकी हिंसात्मक गतिविधियां न केवल अहिंसात्मक बल्कि न केवल हिंसात्मक बल्कि अनैतिक गतिविधियां भी जो इनकी होने लग गई हैं, ये बहुत एक चिंता का विषय है। इससे सारा मैंने अवगत कराया उनको। टिकरी बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, जिस प्रकार स्थानीय लोगों का विरोध वो करते हैं और स्थानीय विरोध भी उनका विरोध करने लगे स्थानीय लोग भी। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पिछले करीब 6 महीने से चल रही किसान संगठनों के धरना स्थल पर बढ़ती हिंसक और अनैतिक वारदातों को लेकर केंद्र और हरियाणा सरकार सख्ती के मूड में है। सीएम ने कहा कि जिस तरह की हिंसात्मक गतिविधियां आंदोलन के नाम पर हो रही हैं, उससे आसपास के कई गांव के लोग भी परेशान हैं। सीएम ने इस दौरान बड़ा बयान दिया और कहा कि आंदोलन के नाम पर धरना स्थल आई महिलाओं के साथ अनैतिक कामों की फहरिस्त सरकार के सामने आई है। इसे सरकार किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं कर सकती। और अनैतिकता की तो सीमा हो गई है, कई घटनाएं उसमें आ गई हैं, आपको भी उसकी जानकारी है ही। चाहे वो बंगाल की युवती के साथ हुआ हो, चाहे एक विदेशी महिला के साथ छेड़खानी की बात आ रही है, और अभी अभी तो हमको जानकारी मिली है कि वहाँ इस प्रकार के बहुत एक रूटीन का अड्डा भी बन गया है महिलाओं के साथ व्यभिचार का। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रदेश के वातावरण को खराब नहीं होने देना चाहते। मैंने ये सारी बात उनके सामने रखी है। उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि जरूर इसके ऊपर कोई ना कोई विचार करके और आगे क्या कार्रवाई करनी है इसके बारे में बताया जाए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी अमित शाह से मुलाकात कर आंदोलन पर फीडबैक दिया। नहीं, बिल्कुल हमने कहीं पर भी चूक नहीं की है। जो जो मामला हमारे सामने आया है हमने उसको किया है। अब कल का भी जो टिकरी बॉर्डर का मामला हुआ है जिसमें एक किसान को पेट्रोल डालकर जला दिया गया है, तो उसकी भी हमने एफआईआर दर्ज की है, उसका पोस्टमार्टम भी करा रहे हैं और 302 भी लगाई है। और जो उसमें कार्रवाई बनती होगी तफ्तीश करेंगे। तफ्तीश करने के बाद जो भी कार्रवाई बनती होगी, जिसके खिलाफ बनती होगी, वो हम करेंगे। इससे पहले आंदोलन में शामिल कुछ युवा किसान नेताओं पर बंगाल की युवती से गैंगरेप के आरोप लगे हैं। पुलिस ने इनमें से कईयों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो वहीं टिकरी बॉर्डर पर किसान को जलाकर मारने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस वारदात को आधार बनाकर आंदोलन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि महिला के साथ बलात्कार और अब हत्या ये आंदोलन है, ये अपराध है। एक के बाद एक वारदात के बाद किसान आंदोलन के मकसद पर सवाल उठने लगे हैं। अब लग ये रहा है कि सरकार का रवैया भी सख्त है, यानी हरियाणा सरकार केंद्र सरकार के इशारे का इंतजार कर रही है। वहां से सिग्नल मिलते ही असामाजिक तत्वों पर कभी भी कड़ी कार्रवाई कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा।
तो अब सरकार आंदोलन की आड़ में चल रहे अपराध के बहाने किसान आंदोलन पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। तो वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी आंदोलन पर सीएम मनोहर लाल के बयान को लेकर पलटवार करने में देर नहीं की है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सीएम से यह पूछा है कि क्या हरियाणा में कहीं पर भी कोई अपराध नहीं हो रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि किसान आंदोलन अपराध का अड्डा बन गया है। इस पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पलटवार करते हुए सीएम से पूछा है कि क्या हरियाणा में कहीं कोई अपराध नहीं हो रहा है। 500 हमारे लोग शहीद हो गए हैं, उसके बावजूद भी आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है। इससे ज्यादा क्या शांति चाहते हैं, हमें समझ नहीं आती। कितने लोग इसमें आत्महत्या कर गए हैं। अभी 2 दिन पहले जो है जींद में एक किसान धरने पे आत्महत्या कर गया है। उसके बावजूद भी आंदोलन में कोई उपद्रव नहीं हुआ, उसके बाद भी आंदोलन नहीं भड़का। और इतना सब कुछ होने के बावजूद जब लोग आत्महत्या कर रहे हैं आंदोलन में, उसके बावजूद भी हमारे पे आरोप लगा रहे हैं कि आंदोलन में तो अपराध बढ़ गए हैं, आंदोलन में तो पता नहीं क्या छेड़खानियां बढ़ गई हैं, आंदोलन में तो अनैतिक काम हो रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं खट्टर साहब से कि खट्टर साहब, क्या पूरे हरियाणा में बाकी कहीं कोई अपराध नहीं हुआ? क्या खट्टर साहब बाकी कहीं कोई छेड़खानियां नहीं सारी बंद हो गई हरियाणा में जब से आपकी सरकार आई? बढ़ रही हैं, हिसाब उठा के देखिए। इससे पहले भी किसान नेता सरकार पर आंदोलन को खत्म करने की साजिश रचने और आंदोलन को बदनाम कर कमजोर करने की कोशिशों के आरोप लगा चुके हैं। उधर सीएम मनोहर लाल पहले दिन से ही किसान आंदोलन पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने आंदोलन का खालिस्तानी कनेक्शन बताया था। बता दें कि किसान 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। इस आंदोलन को 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। वहीं सरकार भी कानून रद्द करने से साफ इनकार कर चुकी है। फरवरी के बाद से किसान और सरकार के बीच किसी तरह की बातचीत भी नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आप अपना ख्याल जरूर रखिए। नमस्कार।